Hello there, this is Dr. C.K. Narayan coming to you from Neo Trader with Charts and Beyond, yet another new episode. This is episode number 29. And as usual in Charts and Beyond, I look at what is the goings on in the market through the medium of charts, where we see it through price action. And I think charts and price action capture everything there is related to sentiment. Sentiments are emerging out of how we look at the macros and how these macros affect us in our action through time. So that is the whole point of this charts and beyond, to keep us prepared for what is happening currently and what is likely to happen ahead. So let us jump right in and look at what is there. First up, a small recap. 2025 2025 जो थे एमिनेंटली फॉरगेटेबल साल था, क्योंकि निफ्टी तो कैसे भी करके लास्ट लास्ट तक तोड़ मरोड़ के 9% रिटर्न निकाल ली. But mid cap was at 5%, small cap -5% and micro cap 9%. हम लोग सब जीवित हैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में इतना दर्द हो रहा है. सो दैट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द नंबर्स. अच्छा, एक और चीज़, इसका कारण क्या था? मेनली एफ आईज वेर कंटिन्यूसली विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द मार्केट एंड सब लोग देख रहे थे कि एफ आई कब आएगा, एफ आई कब आएगा. वो तो आया ही नहीं. $26 बिलियन निकाले सेकेंडरी मार्केट से और $8 बिलियन लगाए वापस प्राइमरी मार्केट में. ये तो बहुत छोटी संख्या है. 8 बिलियन इन फ्रंट ऑफ 26 बिलियन. अच्छा, ये 8 बिलियन भी बड़ा लगेगा, लेकिन ये आप कंपैरेटिव करोगे तो 2024 में इन्होंने 14.8 बिलियन प्राइमरी मार्केट में लगाया था और सिर्फ 14 बिलियन सेकेंडरी मार्केट से विड्रॉ किया था. इसलिए उधर इतना इम्पैक्ट नहीं आए जितना 2025 में आया. राइट. So this is the major problem that we faced in 2025. DI ने तो खाल बचा ली अपने. DI saved the day. और उसमें क्या, हम लोगों ने जो SIP कर रखे थे, that is what saved the day, because the DI could take the money from us and funnel it towards the markets. So we were funneling in more than 25,000 crores per month on an average across the year. And this continues to pour in even as of this month. And total inflows into mutual funds was over 1 lakh crores. So that is the positive side of 2025. And there doesn't seem to be any halt to this. So that's a good news. अच्छा, now good news के बाद bad news क्या हुआ? INR एकदम skid हो गया. And it hit the 90s. 91 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था और वहीं पे खड़ा है. It's been now almost a month since we hit about 90s and we are just churning around there. RBI seems to be comfortable letting it happen. Maybe this is the government's way कि भाई थोड़ा वो टैरिफ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है और एक्सपोर्ट का जो अपना जो है, जो एलिमेंट है, उसको संभाल के रखने के लिए वी मे हैव अलाउड द करेंसी टू वीकन. This might be a deliberate ploy by the government and the Reserve Bank. But what happened is, as the INR kept weakening, it continued to keep the FIs away and they kept selling. So that is a double whammy that we are facing. On the one hand, the government has to ensure that export does not take a hit, because that is an important element for the economy. Imports can take a hit. I think that's a view they have taken right now. But INR weakening is not such a good thing. हाँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चुप बैठा था. गवर्नमेंट ने काफ़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी करा ड्यूरिंग द ईयर एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू डू दैट थ्रू एक तो रेट कट्स आए. अगेन अनदर रेट कट केम इन. Government is infusing liquidity through this thing, OMO, open market operations. There is a talk that February maybe or a rate cut aayega. So liquidity infusion by government is going on, and this is the other good news. So there were a mix of good news, bad news, everything. But overall, markets not in good fettle in 2025, a year of rest, right? But it was not a year of rest for gold and silver. Gold and silver तो लगातार बढ़ते गए. They proved to be the best investments for the year, giving you 50% and 160% return for silver, which was a staggering return for silver not seen ever in the
फ्रॉम द पास एंड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे. सो गोल्ड एंड सिल्वर वेर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय फार ड्वार्फिंग whatever equities and any other instrument class could give us. अच्छा, अभी जो है आगे का क्या, वी हैव नाउ कम इनटू द रिजल्ट सीजन. सो ये दिसंबर एंडिंग के जो रिजल्ट्स है और आगे क्या इमीडिएटली तो एक बजट आने वाला है, तो बजट की एक्सपेक्टेशन ये दोनों मिल करके सेंटिमेंट को जैसे आर्बाइटर करेंगे अभी आगे चलते चलते. सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट आर गोइंग टू गवर्न what is going to happen in 2026. So the weak returns in Nifty mid cap, the negative returns in small cap and micro cap, the continuous selling by FIs, right, and which is then offset a little bit कि हम लोग ने SIP वगैरह कंटिन्यू रखा तो DI के पास पैसा आया तो वो लोग ले रहे हैं. All this needs to continue into the new year. INR पहुंच गया है 1991. बहुत लोग बोल रहे हैं दिस इज द वर्स्ट, वेस्ट में बी डन. मैंने आज ही पढ़ रहा था, आई थिंक JP Morgan सेड द वर्स्ट में बी ओवर फॉर करेंसी, बट हु नोज यार. करेंसी तो जब से आप जब भी करेंसी का चार्ट उठा के देख लो तो आपको तो कंटिन्यूस वीकनिंग ही दिखेगा कहीं ना कहीं. एनीवे, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन अगर गवर्नमेंट चालू रखे तो बहुत बढ़िया, दैट विल हेल्प. सो let's go and see what is happening for the new year. अच्छा, अभी चार्ट्स में चलते हैं. चार्ट्स में क्या था, निफ्टी ने न्यू हाई मार दिया. अपन ने बात किए थे पिछले एपिसोड में कि बैंक निफ्टी ने न्यू हाई मारा और निफ्टी एकदम न्यू हाई की दरवाज़ा खटखटा रही थी लास्ट टाइम. नाउ दे हैव मैनेज्ड, बट देन द प्रॉब्लम इज नो न्यू मोमेंटम. तो आप इधर चार्ट पर देखेंगे तो देर इज़ अ लार्ज कंसोलिडेशन. जो हम पहले बातचीत कर रहे थे उस कंसोलिडेशन से हल्का सा बाहर आया मार्केट. अब एक ब्लू रेक्टेंगल मैंने बनाया है जहाँ पर एक नया कंसोलिडेशन बन रहा है. दोनों कंसोलिडेशन ही है, दैट मीन नया मोमेंटम आया नहीं है. और वो दोनों मोमेंटम इंडिकेटर मैंने लगा रखा है नीचे, तो उसमें आप गौर करें तो यू विल फाइंड दैट द RSI इज अनेबल टू गेट पास 60. नाउ दोज हु आर लिटिल बिट फेमिलियर विथ let's say technical analysis and RSI, you all will know कि by RSI definitely needs to get past about 60 levels, and that is what will tell us that new momentum is coming into the market. अब मार्केट में वो मोमेंटम का इजाफा नहीं हुआ, और जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ और हर बार कहता हूँ कि मोमेंटम प्रीसीड्स प्राइस. मोमेंटम विल ऑलवेज बी देयर बिफोर प्राइस एक्शन. तो मोमेंटम अगर जो लेवल आना चाहिए उस लेवल पे आई नहीं है तो दैट मीन प्राइस एक्शन विल नॉट हैपन. ओके, सो दैट इज एज फार एज द RSI इज कंसर्न वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स. उसके नीचे है, नीचे वाला कॉलम देखेंगे तो दैट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, द ADX DMI. ADX DMI ऑन द डेली चार्ट हल्का सा RSI के मुकाबले में हल्का सा बेटर है, क्योंकि एक तो उसका ADX लाइन है जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन द ग्रीन लाइन हियर दैट इज गोइंग डाउन एंड लाइंग फ्लैट. तो जब तक ADX लाइन फ्लैट एंड इट इज गोइंग टू स्लीप ऑन द ग्राउंड, कोई ट्रेंड का इजाफा नहीं होगा. दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन इज दैट रेंजिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू. तो जब तक डेली चार्ट में ADX लाइन उठ के नया अप ट्रेंड नहीं लगा था विथ अ पॉजिटिव टर्न इन द प्राइसेस, अपन बहुत बड़ा अप ट्रेंड की यहाँ पर उम्मीद कर नहीं सकते. अच्छा, तब अगर वो होना है, अच्छा उसका कोई सिग्नल है, उसका सिग्नल है कि ये जो DI लाइन है ना, यहाँ पर प्लस DI माइनस DI लाइन है. तो अगर आप उसमें इफ़ यू कैन नोटिस दैट क्लोजली, द ब्लू लाइन विच corresponds to the positive DI is actually crossed over and now it is again on top. So even though the momentum did not increase very much, these DI lines are a lot more sensitive as a momentum indicator. ठीक है, तो DI lines दिखा रहे हैं कि भाई even though there is ranging, there is a slight bullish bias. अच्छा, ये bullish bias का अभी तक पकड़ नहीं हुआ है क्योंकि प्राइसेस गए नहीं है, RSI की मोमेंटम बड़ी नहीं है, ADX एकदम फ्लैट सोया पड़ा है, तो इसीलिए रेंजिंग विल कंटिन्यू. हाँ, कब तक कंटिन्यू होगा बहुत मुश्किल है कहना, बट द वेरी फैक्ट
कि we edged upwards and made a new high, that itself should be a little bit comforting for us. इसका ये इसका ये मतलब होता है कि we still should remain buyers during declines. तो ये रेंज है, ये रेंज का लोअर एंड में जब भी आए 25,800 26,000 के आसपास आए तभी आप खरीदी का सोचिए. This is a time to accumulate at the lower levels, not to capitulate, right? So don't throw the towel in, be buyers at lower level. थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, but we have to remain buyers at the lower level. That is the message we are getting from this first chart. Now let us go on to more charts, right? अच्छा, अभी ये डेली चार्ट से आगे गया तो मैंने बोला कि चलो एक लंबा धरने का चार्ट देखते हैं. अभी यहाँ पर 3 चार्ट है, ये सारे निफ्टी के ही है. First chart on the left side is the monthly chart of Nifty. The chart in the middle is a quarterly chart of the Nifty. And the chart on the right is the yearly chart of the Nifty. तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि there is no threat to the long term trend. आप देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और उसका कोई शेकआउट नहीं. आप चाहे उसको मंथली में देख लीजिए, चाहे उसको क्वार्टरली में देख लीजिए और चाहे उसको एनुअल चार्ट में, ईयरली चार्ट में देख लीजिए. जो ईयरली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो देखता है उसके लिए तो मार्केट ने कुछ करा ही नहीं. सो ऑल दिस इज नॉइज, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज नॉइज. ट्रम्प इज नॉइज और एनी अदर थिंग, इलेक्शंस आर नॉइज, बीजेपी, शिवसेना, फलाना फलाना, ये सब नॉइज है. तो ये नॉइज में नहीं जकड़ जाए अपन, इसके लिए अपने को बीच बीच में ये लॉन्गर टर्म चार्ट्स की ओर नज़र डालते रहना चाहिए. Particularly if you see the monthly chart, you will see some red candles etc. But there is no price damage. इस पे आप ज़्यादा गौर करें. और क्वार्टरली में भी आप देखें तो एवरी क्वार्टर 1 कैंडलस्टिक इज शोइंग यू अ सिंगल क्वार्टर. तो ये 3 मंथ्स का एक सिंगल कैंडलस्टिक है. वहाँ भी आप देखें तो लगातार 2020 से दौड़ चली है, वो एकदम बरकरार है. देयर इज़ नो थ्रेट टू द लॉन्ग टर्म. सेम मैसेज कमिंग फ्रॉम एनुअल. और ये चार्ट मैंने बनाया 2007-8 से, मतलब जो एकदम मार्केट की डीप 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 बॉटम थी और वहाँ से जो चली है वो वाला चार्ट है. उस वहाँ पर आप देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में. तो क्यों घबराहट करे. घबराहट उसको ही करना है जो डेली चार्ट में ये बारीकी से मार्केट को देखता है. 1 आवर का ट्रेडिंग करे या 15 मिनट का ट्रेडिंग करे, उसके लिए थोड़ा मायना रखता है ये सब नॉइस. वो नॉइस को कैसा फिल्टर करे उसके बारे में बाद में बात करें. बट जो मीडियम टर्म खेलते हैं और जो लॉन्ग टर्म खेलते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. सो दोज हु आर इन्वेस्टर्स अमंग माय व्यूअर्स हियर, दोज हु आर प्लेइंग लॉन्गर टर्म, दे शुड कीप दिस माइंड. अर्लियर चार्ट में मैंने बोला कि सिग्नल इज बी बायर्स एट द ड्यूरिंग द डिक्लाइंस. ये जो तीनों चार्ट मैं बोल रहा हूँ ये तो डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है that one should continue to be buyers during the decline. ठीक है. अच्छा, ये क्या सिर्फ निफ्टी में है, लार्ज कैप में है. अच्छा, मैंने इधर चार्ट ले लिया मिड स्मॉल 400. ये मिड स्मॉल 400 क्या है. मिड कैप 150 प्लस स्मॉल कैप 250. आप इधर देखिए, इधर भी मोटा मोटा वही सिचुएशन है. सिमिलर इंडिकेशंस आर अवेलेबल in the case of all these charts also, that is mid cap as well as small cap. हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपने पोर्टफोलियो बहुत पिटे हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में. ये तो होगा ही बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म ऑन द डाउन साइड सिवियरली. और वहाँ पर क्या है, क्वालिटी का एक बहुत 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 बड़ा एक रोल होता है. अधिकतर क्या होता है कि बुलिश टाइम में हम लोग क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और जो भी मोमेंटम है, जो भी न्यूज़ है उसमें हम बहक जाते हैं और कोई भी स्टॉक घर में ले लेते हैं. उसी के कारण बहुत चोट लगता है. बट देन इफ़ यू लुक एट इट एंड इफ़ यू बाय क्वालिटी स्मॉल कैप्स एंड क्वालिटी मिड कैप, you would not suffer in the market. So that is the lesson emerging out of mid and small cap. अभी जो दौड़ आएगा आगे उसमें आप फिर से आप खरीदोगे, मिड कैप लोगे, स्मॉल कैप लोगे, लार्ज कैप लोगे. बट मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी केयरफुलनेस के साथ आप लीजिएगा and make sure that you are buying some quality mid caps and small caps along with your large caps, right? So the same message coming from mid and small cap. So be buyers on dips. Okay, so here is the
situation for the overall index. अच्छा, अपने एफआई भाई बंधु तो लगे हुए हैं उनके काम पे. दे आर नॉट changing their tracks. They are continuously big time short. So they had gone down to something like 1.60, 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट. बीच में 2-4 दिन के लिए कम आए. वो क्यों कम आए? क्योंकि वो उनका छुट्टी था तो थोड़ा बहुत तो शॉर्ट्स गॉट कवर्ड. जैसे ही नया साल शुरू हुआ फिर से उनकी सेलिंग शुरू हो गई. सो देर इज बिग टाइम शॉर्ट विच इज गोइंग ऑन हियर. इसको देख करके लगता है कि दिस इज सम लॉन्ग टर्म हेज वाला शॉर्ट है. ये कोई डायरेक्शनल शॉर्ट लगता नहीं है. Because they are also big time long in put options. You see, they are shorting small time call options, and so they are largely long in put options and they are short in index options, right? तो ये कोई hedge trade की जैसा लग रहा है. तो आप ये बहकावे में नहीं रहेगा कि बस अभी एनी टाइम नाउ एफ आईज हैव टू कम इन एंड दिस हैज टू गो अप and this and that. It is not happening, boss. The data is not telling us anything like that. और अगर डेटा बोल नहीं रही है तो उस उम्मीद में बैठे रहना would be foolishness. तो FI seem to be having head shots in the market, and every time they are having a chance, they are simply banging it in. पिछले महीने में जब ही नीचे चले गया था तो इंडेक्स पहुंच गया था 25,000 के करीब. अब फिर when the new year has come, we have gone up to 26,300. So we have given them a better price levels to hedge and they have taken advantage. पिछले हफ्ते ये लगातार बेच रहे. Today is the 7th of January when I am doing it, and in this week also they have been sellers. So I don't think we should hold our breath waiting for the FIs to come. एज एंड व्हेन दे कम, ये जो डेटा है, कैश का डेटा और फ्यूचर्स का डेटा और इंडेक्स के डेटा, इसमें आंकड़े दिख जाएंगे. वो दिखने के बाद आप वो सोच में जाए कि शायद एफ आईज आ गए, अब ट्रेंड सुधरेगा, फिर अपने को बहुत समय मिलेगा टू डू वेरियस थिंग्स लेटर. बट इफ़ यू सिट इन द होप दैट एफ आईज अभी आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आई थिंक दोज होप्स विल बी डैश्ड. सो बेटर नॉट टू एंटरटेन देम. तो ये एक मैसेज था, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि एफआई कब आएगा, इतना शॉर्ट है, वो लोग काटेंगे तो बाजार तो भागेगा. भाई यहाँ पर कोई बाजार भाग नहीं रहा है. जब बाजार भागने का संकेत आएगा वो अपने आप अपने को चार्ट्स में दिख जाएंगे. सेंटिमेंट में सुधार आ जाएगा, मैक्रो डेटा सुधर जाएंगे, ये सब दिख जाएगा अपने को चार्ट्स पे. और जो हमारी कमेंट्री है वो भी जारी रहेगी और मैं या अन्य कमेंटेटर सब लोग आपको ये मैसेज पहुंचाते रहेंगे. सो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है. सो अगर अभी तक आप न्यू ट्रेडर चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैव बीन हियर टिल नाउ, इफ़ यू हैव लाइक्ड व्हाट यू हैव सीन सो फार, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Please join the channel and make sure you press the bell icon so that you are notified whenever the next video is brought out by us, right? So moving on. So this was the thing with the FIs. Now, sector indices. Sector indices को मैं जब भी देखूं तो इतना खराब नहीं है सिचुएशन. ओके, नॉट ऑल इज लॉस. जैसे दिखेंगे इधर अरे FI तो बेच दिए, इधर रेंजिंग है, फलाना फला. Not all is lost. There are many pockets showing you some resilience. कई सेक्टर इंडाइसेस है जहाँ पर तो थोड़ा बहुत तो तेजी दिख ही रहा है. सो मार्केट हैज़ बिकम very choosy. Now when market has become very choosy, we also have to become very selective. तो अभी मैं what I'll do is I'll just shift to the charts and we can have a look at some of the sector indices. So okay, so see the Nifty here is near the previous high, right? And the trade of today is going on and it's not, this is weekly. This week has not been very good. So here is what it is. So now if I go and look at all the sectoral indices, there are very many and every now and then newer ones are getting added. So I have marked a few where there seems to be some amount of action.
सो बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा है दैट इज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वी हैव टू बी बायर्स ऑन द स्मॉल ऑन 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 द लोअर साइड. इसमें प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी बहुत तो तकलीफ आ रही है क्योंकि एच डी एफ सी बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग. हाँ, बट रिसेंटली क्या हुआ है कि एच डी एफ सी बैंकिंग का नॉन परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस हैज बीन little bit offset by ICICI Bank picking up the tab and that is going up. So it is looking like थोड़ा उधर shift over buying हो रहा है by institutions. They are moving out of HDFC Bank perhaps. ये तो मेरा अंदाज़ा है कि HDFC Bank को बेच करके ICICI Bank लिया जा रहा है. And that is why you are seeing two different trends in these two leader banks. State Bank वगैरह तो ठीक है, PSU banks are holding up. So that is one area that you should look at. But then other private banks like AU, AU Small Bank and all that are doing well. You can take a look at RBL Bank, which is improving. Federal Bank had a good run. Maybe some profit taking will come here and there, but on declines, all of these stocks should be buyers. So that is one sector. Auto is another sector. Look at that. That is at a new high also. Some profit taking again during this week, but that is not surprising. This market is not having a one-way traffic, तो थोड़ा ऊपर, let's say 2 steps forward, 1 step backward. ऐसा टाइप मूवमेंट चलेगा. इस मूवमेंट से अपने को घबराना नहीं है. अच्छे जो सेक्टर है उसको आइडेंटिफाई करके उसी में ध्यान रखना है. और एक कमोडिटीज़ में जिसमें आ जाएंगे आपके स्टील, सीमेंट और अन्य कमोडिटीज़, थोड़े बहुत डाइवर्स केमिकल्स वगैरह जो है, ये भी शायद आ जाएंगे. दिस विल बी अ मिक्स बैग. Commodities are inching up and they have come near the highs, so it may be worthwhile keeping some eye over there. Now the other one is of course finance and banking similar. So I have already said my piece. So finance में क्या है, थोड़े NBFC वगैरह, so NBFC are all also worth keeping an eye on. Now infrastructure में भी आप देखिए, infrastructure stocks also had come to the previous high. Infrastructure में government is taking steps to put in money. Their share of infrastructure spending, which was about 7.5% at the start of last year. Now I was reading this report on infrastructure spending by the government. They have now gone to about 11.5%. But the unfortunate thing is that the private sector capex going into infrastructure is really lagging. In fact, we are even lesser than the last year, which is not really good news. Government is doing its bit, but private sector is not stepping up for various reasons best known to them. ठीक है, थोड़े बहुत valid reasons होंगे, but then the point is that until and unless private sector capex comes in and infrastructure spending happens from both ends, this will be difficult to sustain. हाँ, एक बहुत बढ़िया सा मूव आया है in metals. Metals is largely governed by movement in dollars and China and all that. And all of that currently is in favor. So that is driving up nicely. So metals is one sector where lots of people love to trade. तो उसमें trading भी चलेगा, investing भी चलेगा. इस पे आप ध्यान ज़रूर रखें. इसमें जैसे हिंदुस्तान जिंक है, that is tracking the price of silver. There is Hindustan Copper which tracks the price of copper. VDL है जिसमें कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है. एल्यूमिनियम का भी दाम हो रहा है, बढ़ रहा है. टाटा स्टील सेल ये सब वगैरह बढ़ रहा है क्योंकि अभी एक it's not an anti-dumping duty, but it is like a protection duty of sorts which we have levied, and that has given a lease of life to our local steel stocks, and there has been a decent rise in steel stocks as well. So collectively all the metal stocks are up. ये ठीक है. फार्मा जो है वो सब लोग चाहते हैं कि फार्मा स्टॉक बढ़े, लेकिन अब तक उतना दम नहीं आया है. बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, कोई अच्छा समाचार आए तो शायद हो सकता है कि फार्मा बढ़े. बट राइट नाउ दैट इज़ नॉट द केस. जैसे आप यहाँ देखें, PSU बैंक सुपर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर, नाइस न्यू हाइस. अभी हो सकता है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आए, बट गुड परफॉर्मिंग PSU बैंक्स में अपने को लोअर लेवल्स पे लेना ही है. इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, और आपके बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ कोर्स लीडर है.
तो ये सारे बैंकों में ध्यान रहे. This is your services sector that is also on the verge of a breakout. It is also trading near the highs. So, like I said, not all is lost. There are many which are on the verge of an upside breakout or have just staged an upright breakout. This is the Fin Nifty. तो इसमें तो फ्यूचर्स भी है, ऑप्शन भी है, तो इसमें लोग बहुत कुछ लगे रहते हैं. सो उसके आगे हम जाए तो थोड़े अलग अलग आएंगे. तो let's also take a look at mid cap. This is your mid cap index, mid cap 150. Not bad at all because that has also climbed back to the previous high of September of 24. तो select mid caps में भी अच्छी कामकाज हो रही है and that index has also clawed its way back up. तो अच्छा क्वालिटी मिड कैप जैसे मैंने आपको बताया, there you should be paying some attention for 2026. और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स सिमिलर टू द वंस विच हैव शोन यू अर्लियर. अच्छा, इधर एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है स्मॉल कैप इंडेक्स. दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स. यहाँ पर एक्शन हुआ नहीं है. सो स्मॉल कैप इंडेक्स इज स्टिल स्ट्रगलिंग. इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू इवन गेट अप ओवर द मोस्ट रिसेंट हाइज. सो स्मॉल कैप में सावधान रहिए. पहले के जैसे ये उम्मीद मत करिए. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर फॉर स्मॉल कैप्स. इट इज़ नॉट बीइंग सीन इन द इंडेक्स. तो it could be possible. It is not meaning that all small caps will go down, but the small cap index of 250 largest small cap stocks, that is not giving us an encouraging signal. तो small cap में सावधानी से पेश आए. This is what I would say. This is Nifty financial services without banking. So that means NBFCs and other financial services also doing very well. अभी यहाँ पे आई है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर मतलब जो आपके इन्वेस्टिगेशन वाले स्टॉक्स है, आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स है, इसमें भी अच्छा सा मूवमेंट है, ट्रैक्शन है. प्रीवियस हाई के आसपास आ करके खड़ा हुआ है. थोड़े बहुत मूवमेंट आए या मोमेंटम वहाँ से पकड़े. सो आई थिंक दिस विल बी ऑल्सो एन इंडेक्स टू कीप ट्रैक ऑफ इन द न्यू ईयर. हाउसिंग, this is also an index which is provided by NSE, and recently we are seeing some new traction in housing. So यहाँ पर थोड़ा ध्यान रहे. I think this should be something which should be worthwhile trying to keep track of. Manufacturing, government is placing a lot of focus on manufacturing. So manufacturing also is pulling up. Make in India story seem to be taking hold. PLI schemes are proving to be very very beneficial. That is all happening. तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आप ज़रूर उसमें ध्यान रखिए. दिस इज लार्ज एंड मिड कैप एंड दिस इज निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट. तो ये एक ये जो 150 मिड कैप था उसका एक अंश है ये. उसमें से दिस इज अबाउट 50 स्टॉक्स मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स. वो आप देखिए, मिड कैप वॉज नियर द प्रीवियस हाई. मिड कैप सेलेक्ट हैज गॉन टू अ न्यू हाई. तो ये कंफर्म कर रहा है कि अच्छे क्वालिटी मिड कैप सेलेक्ट करने से आपकी पोर्टफोलियो में सुधार आ सकती है. सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू वीड आउट द बैड वंस फ्रॉम योर पोर्टफोलियो एंड देन गेट इनटू द गुड वंस. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू रियली शो. एंड पहले भी मैं ये इंडेक्स का जिक्र कर चुका हूँ. ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, इतना ऑनलाइन वगैरह का काम हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इकोनॉमी भी बढ़ते जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन होना ही है, लॉजिस्टिक्स होना ही है. और वो भी दिखा रहा है कि दिस इज अनदर सेक्टर विच इज़ इन गुड डिमांड. सो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू टू इन्वेस्ट in this particular space where हम लोग ये निफ्टी बढ़ नहीं रहा है ये अपन बोलते रहे हुए तो मज़ा नहीं आए. बट आपको इसमें थोड़ा केयरफुली काम करना है. और ये केयरफुली काम कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है नियो ट्रेडर, दैट विल कम टू योर रेस्क्यू. एंड दैट विल कम टू योर रेस्क्यू बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट स्टॉक सिलेक्शन. जैसे अभी मैंने मोस्ट रीसेंट चार्ट बताया, निफ्टी मिड कैप स्टॉक सिलेक्टर.
निफ्टी मिड कैप इटसेल्फ इज गोइंग अप, उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है विच आर डूइंग सो वेल दैट इट हैज टेकन द इंडेक्स आल्सो टू अ बेटर हाई. अच्छा, तो ये स्टॉक सिलेक्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, व्हाई वन शुड यूज अ प्रोडक्ट लाइक न्यू ट्रेडर. फर्स्ट इज दे फिल्टर आउट ऑल द नॉइस. क्यों? हजारों में स्टॉक्स है, राइट. 5,000 स्टॉक है बीएससी में, दो ढाई हजार स्टॉक के अधिक है जो रोज ट्रेड होते हैं, उससे अधिक ही ट्रेड होते हैं. Thousands of publicly traded companies. Screens like new trader narrow the universe to something manageable. तो धीरे धीरे क्या है, नॉइज को फिल्टर आउट करेंगे तो यू विल कम इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. इट विल एनफोर्स डिसिप्लिन इन यू. ध्यान ध्यान देवे इस पॉइंट पे. व्हेन यू डिफाइन योर क्राइटेरिया अप फ्रंट, स्कैन का क्राइटेरिया पहले से ही डिफाइंड है, तो ये न्यू ट्रेडर में रेडीमेड मिल जाता है आपको. When you define your criteria up front, you will avoid chasing the stories that don't fit your framework. ये क्या है, खबर उड़ते उड़ते चारों जगह से आते ही रहता है, टीवी में कुछ बकवास चलते रहता है, व्हाट्सएप आपको इनंडेट करते ही रहता है विद वेरियस आइडियाज. इसके सारे के पीछे भागना नहीं है और अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है. वी हैव टू डू सम पॉइंटेड वर्क. यू अपना फ्रेमवर्क जो पहले बनाए ना न्यू ट्रेडर के माध्यम से, तो वो फ्रेमवर्क आपको आपका एनर्जी को वेस्टफुल डायरेक्शन में वेस्ट करने से आपको बचाएगा, राइट. देन सरफेस द ओवरलुक्ड. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, एनालिस्ट कवरेज वेरीज. कभी ये स्टॉक कभी वो स्टॉक, 4 रिपोर्ट निकल गए, उसके पीछे टीवी में आता है. सो जो एनालिस्ट का कवरेज होता है वो शोकेस होता है, सभी जगह बोलता है ये रिपोर्ट आया, वो ऐसा रिपोर्ट आया, वैसा रिपोर्ट आया, इसके आगे कुछ नहीं होता है. तो बट देन देर आर सो मेनी स्टॉक्स दैट वी सी which also hold out potential. So a well designed screen, which is what is Neo Trader, they can surface यानी bring to the surface, वो आपका नज़र उसकी तरफ खींचेगा जो otherwise you would skip it, you will not notice them. And वो कोई भी मार्केट कैप कैटेगरी में हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी जगह आपको मिल जाएगा. एंड सबसे अहम, दिस होल एक्सरसाइज इज रिपीटेबल. आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना नहीं है. आपका दोस्त जो आपको टिप देता है, आपका ब्रोकर जो आपको टिप देता है, आप कोई भी जहाँ सोर्स से भी आप टिप ले रहे हो, वो लोग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा टिप. और क्या करना है ट्रेड, उसका टिप नहीं मिलेगा आपको, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा. न्यू ट्रेडर इज एन एंड टू एंड मार्केट कंपेनियन. आपको गाइडेंस भी करेगा, डायरेक्शन, देन वेयर टू प्ले, आपका मैदान किस मैदान में आपको खेलना है, व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक्स टू प्ले, and which stocks among the many to select, and what type and how long. उसके स्टॉप्स कहाँ लगाए, उसके टारगेट का क्या उम्मीद रखे, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, ये न्यू ट्रेडर के जरिए हो सकता है. एंड द रिपीटेबिलिटी, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. रन द सेम स्क्रीन डेली, वीकली, मंथली एज पर योर नीड्स. इंट्राडे में भी चलाइए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो. एंड यू विल कैच बिजनेसेस as they enter your criteria, and that is the key thing. इसी से आप दूसरे लोगों से आगे रहेंगे, और आगे रहना बहुत ज़रूरी है इस रेस में विनर बन के आने के लिए. फॉर आइडिया जनरेशन, फॉर ट्रेडिंग और फॉर इन्वेस्टिंग, न्यू ट्रेडर रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अवेलेबल. अगर आज तक आप न्यू ट्रेडर से वाकिफ़ नहीं हो तो हमारे ऑफिस, ये जो दिए हुए हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारी सपोर्ट टीम से जुड़िए. दे विल गिव यू अ डेमो, दे विल गिव यू वॉट एवर सपोर्ट. इफ़ यू हैव बॉट इट and if you have not used it very much, get in touch with our support team. They are all standing by. Every day Neo Trader is becoming better and better because I am in charge of R&D of Neo Trader. तो उसको मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया चीज़ डालने का कोशिश करते रहता हूँ, एग्जिस्टिंग चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश में रहता हूँ, और मार्केट का वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट टू द मार्केट, रेलेवेंट टू द मार्केट, उस चीज़ में फोकस रखने का कोशिश में रहता हूँ. न्यू ट्रेडर जैसा अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, उससे ज़रूर जोड़िएगा. हमारे ये जो चैनल है उससे जोड़िएगा. यहाँ तक अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे तो थैंक यू वेरी मच. एंड अंटिल आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप you will give us a like and share this video, and I'll see you again. And this is Dr. Narayan saying goodbye for now, and until we meet again.